السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ جاگ جائے مسلمان تو اب نیند سے کہ تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں۔ جاگ جائے مسلمان تو اب نیند سے کہ تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں۔ جاگ جلدی سے تو اور جگا قوم کو کہ تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں۔ اور قومی کہیں سے کہیں جا چلی تجھ کو آپس کی جھگڑوں سے فرصت نہیں۔ اور قومی کہیں سے کہیں جا چلی تجھ کو آپس کی جھگڑوں سے فرصت نہیں۔ جاگ جائے مسلمان تو اب نیند سے کہ تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں۔ معزز سامعین کرام و حاضرین مجلس، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین ایک ایسی چیز کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اگر کوئی انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، اپنے آپ کو نہیں روکتا، تو وہ آدمی اور وہ قوم بزدل ہو سکتا ہے اور ان کی ہوا اکھڑ سکتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع اور اس کے رسول کی پیروی کرو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اصول کو نازل کرے تم اس اصول کے مطابق عمل کیا کرو، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کے بتائے ہوئے فرمان کے اوپر عمل کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اور تم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کر لے جاؤ اور اس کے رسول کی پیروی کر لے جاؤ، اس کے بعد تم گروہ میں نہ بٹو، تم آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، تم آپس میں متحد رہا کرو، تم آپس میں لڑا نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وجہ کو بیان کر رہا ہے کہ تم اگر آپس میں لڑو گے اور اپنے درمیان میں اتحاد کو قائم نہیں کرو گے، اگر تم اتحاد و اتفاق کو قائم نہیں کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تم کمزور ہو جاؤ گے۔ دنیا والے انسان جس وقت چاہیں گے تمہارے اوپر ہاتھ کو صفا کر لیں گے، جس وقت چاہیں گے تمہارے اوپر ہاتھ کو صاف کر لیں گے، جس وقت چاہیں گے تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کر دیں گے۔ اگر تم اپنے درمیان میں اتحاد کو قائم نہیں رکھو گے، اگر تم آپس میں لڑتے رہو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا والے انسان تمہیں تکلیف میں مبتلا کریں گے، دنیا والے انسان تمہیں ستانے کا کام کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم اگر آپس میں اتحاد کو قائم نہیں رکھو گے تو تمہاری حالت کمزور ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکڑ جائے گی۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تم اگر آپس میں لڑتے رہو گے اور آپس میں تفرقہ بازی کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کمزور ہو جاؤ گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا آج اس دنیا کا آپ مشاہدہ کر لیں، سرسری طور پر اپنی نظروں کو دوڑائیں، دنیا کا مشاہدہ کریں، آپ کو مسلمانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آئے گا، لیکن وہی مسلمان جو اس دنیا کے اندر ایک بڑی تعداد میں موجود ہے، لیکن سارے کے سارے مسلمان آج پریشانیوں سے دوچار ہے، تکالیف میں گھرے ہوئے ہیں۔ ایک قوم، ایک سماج، ایک ملک جس وقت چاہتا ہے مسلمانوں کو ستانا شروع کرتا ہے، جس وقت چاہتا ہے مسلمانوں کے اوپر پریشانیوں کو مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں ہم اور آپ تکلیفوں میں مبتلا ہے؟ کیوں ہم اور آپ پریشانیوں میں مبتلا ہے؟ کیوں دنیا والے انسان مسلمانوں کو ستانے کے اوپر تلا ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک اصول کو واضح کیا کہ اے مسلمانوں، اگر تم امن و امان چاہتے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر امن اور سلامتی چاہتے ہو تو تمہارے لیے اصول یہ ہے کہ تم اس اصول کے اوپر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت کریمہ کے اندر اسے اصول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ جس انسان نے اس دنیا کے اندر ایمان کو لے آیا، جس آدمی نے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آیا اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے ایمان لے آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر امن و امان کی اصول کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، اگر تم اس دنیا کے اندر چاہتے ہو کہ تمہیں سکون مل جائے، اگر تم اس دنیا کے اندر امن اور سلامتی چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان کو لے آنے کے بعد
जिस इंसान ने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म नहीं किया, उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, यही वो इंसान है जिसे दुनिया के अंदर अमन मिलने वाली है, यही वो इंसान है जो दुनिया के अंदर सुकून के साथ अपनी जिंदगी को गुजारने वाला है। उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, और यही वो इंसान है जिसे हिदायत मिलने वाली है, यही वो इंसान है जिसे आखिरत के दिन कामयाबी मिलने वाली है, यही वो इंसान है जिसे अमन इस दुनिया के अंदर और सुकून मिलने वाला है। मेरे अजीज साथियों, जब इस आयत करीमा को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के दरमियान में इस आयत करीमा को पेश करते हैं। सहाबाए किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला इस दुनिया के अंदर कौन सा इंसान ऐसा है जो आदमी अपने नफ्स के ऊपर जुल्म नहीं करता है, जो आदमी अपने नफ्स के ऊपर, अपने जिस्म के ऊपर जुल्म नहीं करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ेह करते हुए बयान कर रहे हैं कि ऐ मेरे सहाबियों की जमात, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि जिस इंसान ने ईमान को ले आया, इस्लाम को कबूल कर लेने के बाद शिर्क की गिलाज़त से अपने आप को दूर रखा, जिसने अपने आप को शिर्क से बचा करके रखा, यही वो इंसान है जिसको इस दुनिया के अंदर अमन मिलने वाली है, यही वो इंसान है जिसे इस दुनिया के अंदर कामयाबी मिलने वाली है, यही वो इंसान है जो दुनिया के अंदर तकलीफों से महफूज रहने वाला है, जिसने ईमान को ले आया और ईमान को ले आने के बाद अपने आप को शिर्क से बचा करके रखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर जुल्म से शिर्क की तरफ इशारा कर रहा है कि जिस आदमी ने अपने आप को शिर्क से बचा करके रखा। मेरे अजीज साथियों, हमारी तनज़्ज़ुली का एक वजह यह भी है कि हमने अपने आप को शिर्क से नहीं बचाया। आज हमारा घराना जो है वो शिर्क की गिलाज़त में मुलव्विस है, हमारा घराना जो है वो शिर्क से डूबा हुआ है, शिर्क में डूबा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा गैरुल्लाह से मदद तलब की जा रही है, अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ करके दूसरे को मुश्किल कुशा तसव्वुर किया जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला को छोड़ करके दूसरे को हाजत रवा माना जा रहा है। मेरे अजीज साथियों, यही वजह है कि आज हम परेशानियों में मुब्तला है, यही वजह है कि आज हम इस दुनिया के अंदर परेशानियों से दो चार हैं। जिस वक्त जो भी चाहता है मुसलमानों के ऊपर अपने हाथ को साफ कर लेता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी कुरान मजीद के अंदर और एक आयत करीमा के अंदर बयान किया कि दुनिया वाले लोगों, अगर तुम इस दुनिया के अंदर अमन चाहते हो, सलामती चाहते हो, हुकूमत चाहते हो, सल्तनत चाहते हो, तो किन चीजों की जरूरत है? अल्लाह तबारक व तआला आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि ऐ दुनिया वाले लोगों, अगर आज तुम्हारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है, अगर आज तुम्हें परेशानियों और तकलीफों की भट्टी में झोंका जा रहा है, तो नतीजा ये है कि तुम्हारे दिल से ईमान खत्म हो चुका है, तुम्हारे दिल के अंदर ईमान मौजूद ही नहीं है। तुम इस दुनिया के अंदर बेईमानी की हालत अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो। नतीजा ये है कि तुम इस दुनिया के अंदर परेशानियों से दो चार हो। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ऐ लोगों, तुम इस दुनिया के अंदर गमज़दा ना हो, परेशान ना हो, तुम इस दुनिया के अंदर गमज़दा ना हो, अपने आप को मायूसी में मुब्तला न करो। यकीनन तुम्हारी हाथों में ही हुकूमत आने वाली है, यकीनन तुम्हारे ही हाथों में हुकूमत आने वाली है, यकीनन तुम्हारी ही हाथों में सल्तनत आने वाली है। लेकिन शर्त यह है कि तुम इस दुनिया के अंदर ईमान की हालत में अपनी जिंदगी को गुजारो। तुम इस दुनिया के अंदर मोमिन बन करके अपनी जिंदगी को गुजारो, ईमान की हालत में अपनी जिंदगी को गुजारो। अगर तुम इस दुनिया के अंदर मोमिन बन करके अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो नतीजा ये होगा कि तुम इस दुनिया के अंदर सल्तनत भी हासिल कर ले जाओगे और तुम्हें इस दुनिया के अंदर हुकूमत भी मिल जाएगी, तुम परेशानियों से बच जाओगे।
इन दोनों आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि तुम अमन चाहते हो, हुकूमत चाहते हो, सल्तनत चाहते हो, तो तुम इस दुनिया के अंदर ईमान की हालत में अपनी जिंदगी को गुजारो। और दूसरी आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम इस दुनिया के अंदर शिर्क की गिलासत से अपने आप को बचा लो, तुम्हें अमन मिलेगी, तुम्हें इस दुनिया के अंदर सुकून मिलने वाली है। मेरे अजीज साथियों, अगर हम चाहते हैं कि सुकून मिल जाए तो हम और आप इस दुनिया के अंदर ईमान की हालत में और अपने आप को शिर्क से बचा करके अपनी जिंदगी को गुजारे। मेरे हाथों में एक रुक्का थमाया गया है, जिस रुक्के के अंदर लिखा हुआ है कि चंदे को वसूल किया जाए। मेरे अजीज साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मौसम खराब होने की वजह से चंदा नहीं हो पाया और मदरसा जो है वो खसारे में चल रहा है। आप लोगों का इदारा है, आप लोगों का मदरसा है, आप लोग बखूबी जानते हैं कि इदारे के अंदर अभी जोर शोर के साथ काम चल रहा है और बड़ी ईमानदारी के साथ मैं आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूं कि अगले साल मैं जब इस इदारे के अंदर आया था तो मैं सोच रहा था कि ये इदारा कैसे तरक्की करेगा, लेकिन जब इस साल में इस इदारे के अंदर तशरीफ लाया और मैंने देखा कि एक साल के अंदर जिस तरह से तरक्की के रास्ते पर यह इदारा गामिज़न है, यकीन माने कि ये आपके लिए वो समरा और वो फल साबित होगा कि आने वाली नस्लें इसी मदरसे से तालीम को हासिल करेगी और गुलाब के फूल की तरह अपनी खुशबुओं को इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बिखेरेगी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को कुर्बानी देनी होगी, लेकिन सबसे पहले आपको इस इदारे के लिए ताउन करना होगा, पहले आप लोगों को इस इदारे के लिए मदद करना होगा ताकि ये इदारा जो है अपनी कामयाबी के रास्ते पर गामिज़न हो जाए और मंजिल मकसूद तक पहुंच जाए। आप लोगों से ये मुअद्दिबाना इल्तिमास करूंगा, आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि आप लोगों से जितना हो सके आप लोग ताउन करने की कोशिश करें। मेरे अजीज साथियों, जब हम दीन इस्लाम की तारीख को पढ़ते हैं, दीन इस्लाम की तारीख को पढ़ना शुरू करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये वही दीन इस्लाम है जिस दीन इस्लाम के फरोग के लिए एक इंसान ने अपने हाथों को उठाया, अपने हाथों में इस्लाम के परचम को थामा और धीरे धीरे जब सहाबाए किराम ने कुर्बानियां देनी शुरू कर दी, सहाबाए किराम ने अपनी जान की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, वक्त की कुर्बानी दी और अपनी नफसानी कुर्बानी दी। जब सहाबाए किराम ने कुर्बानियां देनी शुरू कर दी, धीरे धीरे ये इस्लाम बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते आज हम तक ये दीन इस्लाम पहुंचा है। मेरे अजीज साथियों, किसी भी संगठन में, किसी भी जमात में या किसी भी इदारे में कामयाबी के लिए या कामयाबी को हासिल करने के लिए सामईन की एक अहम रोल हुआ करती है और चंदा देने वाले लोगों की एक अहम रोल हुआ करती है। मेरे अजीज साथियों, अगर आप इस मदरसे को कामयाब करना चाहते हैं, फलाह और बहबूदगी के रास्ते पर कामयाब करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जितना हो सके आप लोग बढ़ चढ़ करके ताउन करने की कोशिश करें और अपने दौलत को इस मदरसे के अंदर देने की कोशिश करें ताकि वो पैसा आपके जो है कल क़यामत के दिन काम आए और आपके लिए जरिए निजात बने। मेरे अजीज साथियों, वो हदीस में आप लोगों के सामने बयान कर दूं जिस हदीस के रावी हदीस हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। फजर होने वाला है, सिर्फ 15 मिनट बचा है। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ताउन करने की कोशिश करें, जितना हो सके आप लोगों से जितना हो सके आप लोग जो है मदद करने की कोशिश करें। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े के लिए सहाबाए किराम से गुजारिश की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान के बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर के अंदर जाते हैं और अपने घर के कुल कायनात को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं और एक हिस्से को लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो जाते हैं। इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, ऐ उमर फारूक, तूने अपने घर के लिए क्या छोड़ा है, अपने घर के लिए क्या छोड़ा है? हजरत उमर फारूक कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने घर के लिए बल इसी माल की तरह अपने घर के अंदर छोड़ा है, यानी आधे हिस्से को मैंने अपने घर के अंदर छोड़ा है और आधे हिस्से को मैंने आपके कदमों में हासिल
कर दिया है। मेरे अजीज साथियों, इतने में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं और अपने घर के कुल कायनात को लेकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो जाते हैं। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, ए अबू बकर, तूने अपने घर के लिए क्या छोड़ा है? अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर के लिए मैंने अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा है। मेरे अजीज साथियों, यही कुर्बानियां हैं, यही सदक़ात व खैरात जो उमर फारूक दीन इस्लाम के लिए क्या करते थे, सहाबाए किराम किया करते थे, जिसका नतीजा है और जिसका समरा है कि दीन इस्लाम ने इस दुनिया के अंदर फरोग पाया और आज हम तक ये दीन इस्लाम पहुंची है। मेरे अजीज साथियों, मैं आप लोगों से ये फिर से गुजारिश करूंगा कि आप लोग ताउन करने की कोशिश करें, मदद करने की कोशिश करें, ताकि ये इदारा जो खसारे में चल रहा है वो जो है तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो जाए और अपने खसारे को जो है ख़त्म कर सके। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जितना हो सके आप लोग बढ़ चढ़ करके ताउन करने की कोशिश करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हमारे और आपके बैठने को कबूल फरमाए और आप लोगों ने जो दान दिया है, जो ताउन किया है, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम के तमाम ताउन को कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।